हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। इसका मैंने एक लेक्चर आपको सेंड कर दिया था जिसपे मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन कि एक फंक्शन है टू वेरिएबल्स का, हम उसको कब कहते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और हमने उसकी दो एग्जांपल्स की थी। आज हम उसकी आगे की एग्जांपल और एक थ्योरम करते हैं और इसके बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, राइट? Anji. So this is your example number 3. 1 and 2 has been done in the previous lecture. For the function f of xy, which is equal to x square y on x raised to 4 plus y square. This is when xy is not equal to 0, 0, and it is 0 if xy is equal to 0, 0. Show that the partial derivatives fx and fy exist everywhere in the region -1 less than or equal to x less than or equal to 1, -1 less than or equal to y less than or equal to 1, although fxy is discontinuous at origin. हाँ जी, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसके बारे में हमें शो करना है कि इस फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं इस रीजन के अंदर. व्हाट इज दिस रीजन? x is varying from -1 to 1, y is varying from -1 to 1. So what is the region? Region is this one. ठीक है, इस रीजन के अंदर जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं फंक्शन के, दे आर एग्जिस्टिंग, बट द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूज एट ऑरिजिन. ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स का किसी नेबरहुड, किसी पॉइंट के नेबरहुड में एग्जिस्ट करना भी ये इंश्योर नहीं करता कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूज है उस पॉइंट पे, राइट? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द ओरिजिन एंड हियर इज अ नेबरहुड ऑफ ओरिजिन at every point of which fx fy exist, partial derivatives are existing, still the function is just continuous at the point 0, 0, right? So what is fxy? It is x square y upon x raised to 4 plus y square when xy is not equal to 0, 0. So we have to show that these partial derivatives exist in the given region, right? So when x is not equal to 0, y is not equal to 0, what is f of x? F of x is, we differentiate it partially with respect to x, x4 plus y square का whole square, नीचे का function as it is 2xy minus x square y as it is 4x cube, right? तो ये बन जाएगा आपका 2xy y square minus x raised to 4 upon x raised to 4 plus y square का whole square, right? Next, what is fy? If you differentiate this with respect to y partially, what do you get? x4 plus y square का whole square, x4 plus y square as it is, x square minus x square y as it is into 2y. So what is this equal to? This is x square times x raised to 4 minus y square upon x4 plus y square का whole square, right? And when x is 0, y is 0, what is fx 0, 0? By definition, it is limit h tending to 0 f at h0 minus f at 0, 0 upon h. ठीक है, now what is this? यहाँ पे हमने by ये जो सिंपल डिफरेंशिएशन है उससे हम ये क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि 0, 0 पे जो फंक्शन है उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है. 0, 0 पे फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, उसके नेबरहुड पे कुछ और है, तो 0, 0 पे हमें बाय डेफिनेशन इसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो निकालना पड़ेगा, राइट? व्हाट इज दिस? लिमिट h टेंडिंग टू 0, x को h y को 0 जब मैं पुट करूंगी इसमें तो क्या बनेगा? 0 माइनस 0 अपॉन h. व्हाट इज लिमिट ऑफ 0? लिमिट ऑफ 0 इज
0. ठीक है. And what is f of y 0 0? Similarly you can prove by definition this is limit k tending to 0 f at 0 comma k minus f at 0 0 upon k. ठीक है. तो ये भी आपका किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर. Right. So what we have proved that fx and fy exist in the given region -1 to 1 -1 to 1. ठीक है. क्योंकि ये हमने सबके लिए प्रूव कर दिया तो उस रीजन में भी प्रूव हो गया. राइट. So now we prove that this is discontinuous at origin. To show that f is discontinuous at origin, what we have to show now, f is discontinuous at 0 0. ठीक है. टू शो दिस, अब हमें पता है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कब होता है. ए फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट पॉइंट ए बी इफ लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू ए बी एफ एक्स वाई, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू व्हाट, f एट ए बी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट. राइट. So to show that f is discontinuous at origin, we will show that its limit at 0 0 does not exist. अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता. राइट. Now what is the function? f x y is given to be x square y upon x raised to 4 plus y square when x y is not equal to 0 0. Right. So अब हमें पता है what is वही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे. इफ यू टेक y to be mx square. ठीक है. सो हियर इज अ फंक्शन जिसकी 0 पॉइंट पे लिमिट क्या है, 0 के बराबर. सो व्हाट इज दिस, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f एट x कॉमा एम एक्स स्क्र. व्हाट इज दिस, y को हम एम एक्स स्क्र पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्र एम एक्स स्क्र एक्स रेज टू 4 प्लस एम स्क्र एक्स रेज टू 4, x4 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, m अपॉन 1 प्लस एम स्क्र. व्हाट इज लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इटसेल्फ. ठीक है. नाउ दिस लिमिट डिपेंड्स अपॉन m. तो अगर हमें पता है कि अगर ये लिमिट डिपेंडिंग अपॉन m आ जाती है तो ये जो लिमिट है, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई विल नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट. ये हमने पीछे भी रिजल्ट किया हुआ है इस रिजल्ट का यूज. ठीक है. सो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. अगर ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती 0 0 पॉइंट पे तो ये फंक्शन 0 0 पे कंटिन्यूस नहीं हो सकता. ओके. हाँ जी. नेक्स्ट is the theorem. Next is theorem. एक और क्वेश्चन है, पहले वो करते हैं. What is example number 4? It says let f of x y is equal to 1 by 4 times x square plus y square times log of x square plus y square, and it is 0. This is when xy is not equal to 0 0 and this is when xy is equal to 0 0. We are to show that fxy is same as fyx. ये जो मिक्स्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं fxy and fyx, they are equal at xy for all xy. Also show that fxy and fyx are not continuous at 0 0 0 0 पॉइंट पे ये जो फंक्शंस हैं दे आर नॉट कंटिन्यूस. ठीक है. तो ये एग्जांपल हमें क्या कहती है, हमें ये प्रूव कराने के लिए कहती है कि ये शो करो कि ये जो दो डेरिवेटिव्स हैं ये बराबर नहीं है, सॉरी ये बराबर है सभी पॉइंट्स पे एंड दे आर नॉट कंटिन्यूस एट 0 0. ठीक है. हम आगे की कुछ थ्योरम्स करेंगे इस एक्सरसाइज के बाद, जिससे हमें पता चलता है कि ये ट्रू हो सकता है. मीन्स यहाँ ये जो एग्जांपल है ये बताती है कि जो हम आगे थ्योरम करेंगे, एक यंग्स थ्योरम और श्वास थ्योरम, उन थ्योरम्स का जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है. राइट. एक्चुअली ये एग्जांपल्स बाद में आ जानी चाहिए थी. चलो हम अभी एग्जांपल को देख के ही करते हैं. हम ये रिलेशन नहीं बनाते कि ये एग्जांपल में ऐसा क्यों पूछा गया है. हम ये कंसंट्रेट करते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है और उसको उसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है. हमें शो करना है कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं सभी पॉइंट्स पे बराबर हैं बट ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है 0 0 पे. राइट. सो दिस इज द केस व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू
जीरो। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि x नॉट इक्वल टू जीरो, वाई नॉट इक्वल टू जीरो पे ये दोनों डेरिवेटिव्स आपस में बराबर हैं, क्योंकि इस तब हमें सिर्फ बाय जो रूल है, बाय जो डिफ्रेंसिएशन के रूल हैं, तब भी डिफ्रेंसिएशन ऐसे ही निकालना है। बट x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो के लिए हमें बाय डेफिनेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बिहेवियर है ये जीरो जीरो पे फंक्शन का चेंज हो रहा है। व्हाट इज एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x square plus y square as it is, log of 1 over this into 2x plus log of x square plus y square as it is into 2x। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1/4 2x बाहर 1 प्लस लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया एफ एक्स। नाउ सिमिलरली व्हाट विल बी एफ वाई? इट विल बी y अपॉन टू, ये आ गया x अपॉन टू, y अपॉन टू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, ये हम सिमिलरली भी लिख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इट इज सिमेट्रिकल इन x एंड y। जो रोल x का है इस फंक्शन में वही रोल y का है। x का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, y का भी यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे भी x का स्क्वायर हो रहा है, y का भी स्क्वायर हो रहा है। ठीक, हाँ जी। नेक्स्ट, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या आ चुका है? एफ ऑफ एक्स इज एक्स अपॉन टू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एफ ऑफ वाई क्या आ चुका है? वाई अपॉन टू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने क्या निकालना है? इसके अनदर डेरिवेटिव एफ एक्स वाई, मीन्स हमने इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, नहीं सॉरी, एफ एक्स वाई निकालने के लिए हमने एफ वाई का डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट? तो क्या करेंगे? y अपॉन टू तो कॉन्स्टेंट ही है, विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो अंदर का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x, राइट? तो ये बन जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ व्हाट इज एफ वाई एक्स? इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। x अपॉन टू बाहर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंदर क्या आ जाएगा? 2y। सो इट इज एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y square. So you can see fxy is same as fyx when xy is not equal to 0 0। अब हम प्रूव करेंगे कि when xy is equal to 0 0 then they are still same। हाँ जी, so when x is equal to 0 y equal to 0। what is fx 0 0? ठीक है, तो ये बन जाएगा व्हाट इज एफ एक्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन लगाते हैं जो हमें प्रूव करना है। हमने इन दोनों की इक्वालिटी प्रूव करनी है। इन दोनों फंक्शंस की इक्वालिटी तो प्रूव हो चुकी है, इन पॉइंट्स पे तो प्रूव हो चुकी है, अब 0 0 पे रहेगी। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एफ एक्स वाई एट 0 0। व्हाट इज दिस? एफ वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, राइट? तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, और फंक्शन कौन सा यूज करना है? एफ वाई एच 0 माइनस एफ वाई 0 0 अपॉन एच, ये बन जाएगा। ठीक है, और एफ वाई एक्स एट 0 0 कैसे निकलेगा? विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है किसका? एफ एक्स का, तो लिमिट के टेंडिंग टू 0। अब हमने कौन सा फंक्शन यूज करना है? एफ एक्स 0 के माइनस एफ एक्स 0 0 अपॉन के। ठीक है, ये आ जाएगा। हाँ जी, अब हमें ये चीजें भी निकालनी पड़ेंगी, एफ एक्स एफ वाई। हाँ जी, ये क्या बनेगा? What is f x y 0 0? It is limit h tending to 0। What is f y at h 0? f y ये पड़ा है हमारे पास x y के लिए, h 0 पे मतलब हमारा y क्या होगा? 0। जब y 0 इसमें डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0। सो दिस इज 0 माइनस एफ वाई 0 0। एफ वाई 0 0 अब ये आपको निकालना पड़ेगा। व्हाट इज एफ वाई 0 0? इट इज लिमिट के टेंडिंग टू 0 एफ एट 0 के माइनस एफ एट 0 0 अपॉन के। ठीक है, जब आप इसको निकालेंगे इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो 0 माइनस 0 अपॉन एच, एंड लिमिट ऑफ 0 इज 0, राइट? सिमिलरली यू विल गेट एफ वाई 0 0 ऑल्सो इक्वल टू एफ वाई एक्स एट 0 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो यू हैव got that fxy is same as fyx at 0 0 also। ठीक है, तो 0 0 पे भी बराबर है और बाकी सब जगह भी बराबर है। सो इट मीन्स fxy is same as fyx for all xy, राइट? तो इक्वालिटी तो प्रूफ हो गई। अब हमने क्या शो करना है? दीज फंक्शंस आर नॉट
कंटिन्यूज एट 0 0। व्हाट इज एफ एक्स वाई? पहले तो हमने एफ एक्स वाई निकाला क्या है। एफ एक्स वाई की आपके पास वैल्यू आई है एक्स वाई upon x square plus y square. This is when xy is not equal to 0 0 and it is 0 if xy is equal to 0 0. ये हम अभी भी निकाल के चुके हैं इक्वालिटी प्रूव करने के लिए, राइट अब हमें ये प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूज एट पॉइंट 0 0। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि इस फंक्शन की 0 0 पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो ये फंक्शन कंटिन्यूज नहीं हो सकता। नाउ व्हाट इज दिस लिमिट x, if you put y equal to mx in this function, what is this limit x tending to 0 fxy at x comma mx? What is this limit x tending to 0 x mx upon x square plus m square x square which is equal to m upon 1 plus m square. So this limit is depending upon m. जैसे जैसे m चेंज करेगा ये लिमिट भी चेंज होगी, राइट। सो इट शोज दैट जो लिमिट है इस फंक्शन की 0 0 पॉइंट पे 0 पे, ये जो 0 0 पे वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। अगर इस फंक्शन की 0 0 पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता, इज नॉट कंटिन्यूस एट पॉइंट 0 0. Same way you can prove that f of ix is also not continuous at point 0 0. Is it clear? हाँ जी। Next question. Next is the necessary and sufficient condition for differentiability. Sufficient condition for differentiability. एक तो हमने डेफिनेशन की है डिफरेंशिएबिलिटी की, फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, राइट। अगर तो बाय डेफिनेशन आपको पूछा गया है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल शो करना है फिर तो आपने वैसे करना है, नहीं तो आप ये सफिशिएंट कंडीशन लगा के भी प्रूव कर सकते हो दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। व्हाट इज दिस कंडीशन? थ्योरम इट सेज अगर कोई फंक्शन f ऐसा है, f इज सच दैट नंबर 1 fx is continuous at point AB. Number 2, fy exists at point AB. Then f is differentiable at AB. अगर कोई फंक्शन ऐसा है कि उसका जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है एक के रिस्पेक्ट में वो कंटिन्यूस है और दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है उस पॉइंट पे, then the function f is differentiable. ठीक है, so in some cases you can use this condition to show that f is differentiable. One thing to notice here that this thing is sufficient but not necessary. ऐसा नहीं है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो ये दोनों चीजें ऑब्वियसली होंगी ही, ये जरूरी नहीं है, बट इन दोनों का ट्रू होना ये जरूर है कि then f will be differentiable at that point. Okay, so let us do example number 5 using this theorem. Show that the function given by f of xy which is equal to xy times x square minus y square upon x square plus y square 0. It is when xy is not equal to 0 0 and this is when xy is equal to 0 0. Show that this function is differentiable at 0 0. ठीक है, तो अभी उसने कुछ मेंशन नहीं किया कि आपने किस तरीके से इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल शो करना है, तो इट इज अप टू योर चॉइस। या तो आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव कर दो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, या फिर आप इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव कर सकते हो यूजिंग दिस थ्योरम, राइट। सॉल्यूशन, हाँ जी। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स वाई? इट इज एक्स वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y square, x not equal to 0, y not equal to 0. हमें क्या शो करना है? One function should be continuous at point 0 0. One partial derivative should be continuous and one partial derivative should only exist at that point, right? तो हम क्या शो करेंगे? ये जो function f(x) है, this is continuous at point 0 0. What is f(x)? It is x square plus y square का whole square. y as it is बाहर, अंदर क्या आ जाएगा? जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो ये बन जाएगा y टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। हाँ जी,
and when x is 0, y is 0. What is this function? This is when x is not equal to 0, y is not equal to 0. And when x is equal to 0, y equal to 0, what is fx 0, 0? fx 0 is limit h tending to 0, f at h, 0 minus f at 0, 0 upon h. जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो ये आई 0 minus 0 upon h and limit of 0 is 0, right? So fx xy is this when xy is not equal to 0, 0 and fx 0, 0 is this when xy is equal to 0, 0. ठीक है, so we have to prove the continuity of fx at point 0, 0. So let epsilon positive be given. इसके लिए हमें डाटा चाहिए so that fx xy minus fx at 0, 0. क्योंकि बजाय f की कंटिन्यूटी के हमें किसकी कंटिन्यूटी प्रूव करनी है? fx की. किस पॉइंट पे प्रूव करनी है? 0, 0 पे. ठीक है, तो यही डेफिनेशन लगेगी. व्हाट इज दिस? दिस इज मॉड ऑफ x square minus y square upon x square plus y square plus 4x square y square upon x square plus y square का होल स्क्वायर का मॉडुलस. माइनस 0 आ जाएगा, वो मोड में हट जाएगा. नाउ व्हाट इज दिस लेस देन? क्योंकि सब जगह x square y square plus y square इन्वॉल्व है, सो इट विल बी बेटर टू चेंज इट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स. आई पुट x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा. ठीक है, ये ऐसा सिर्फ इसलिए ताकि ये जो एक्सप्रेशन है वो सिंपल बने, राइट? तो फिर वापस इसको इसी फॉर्म में ले आएंगे हम, राइट? आफ्टर पुटिंग दिस सब्स्टिट्यूशन, what do you get? fx at xy minus fx at 0, 0. What is this equal to? This is equal to r sin theta का मॉडुलस. हाँ जी, वैल्यूज पुट करके और फॉर्मूले यूज करके आपके पास ये आ जाएगा साइन 2 थीटा cos 2 थीटा का स्क्वायर का मॉडुलस, राइट? एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू व्हाट? दिस इज पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इट इज मॉड ऑफ आर साइन थीटा cos 2 थीटा प्लस आर साइन थीटा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, राइट? नाउ दिस इज फर्दर लेस देन और इक्वल टू आर साइन थीटा cos 2 थीटा का मॉडुलस प्लस r sin theta sin 2 theta का स्क्वायर का मॉडुलस. This is further less than or equal to mod of r plus mod of r because this is less than or equal to 1 and this is also less than or equal to 1. Now what is this? This is 2 times r modulus which is 2 times r का मॉडुलस क्या होता है? x square plus y square का रूट. ठीक है, हमने इसको किससे छोटा करना है? I want this to be less than epsilon. ये less than epsilon कब हो जाएगा? When x square plus y square will be less than epsilon square by 4. ठीक है, that is x square will be less than epsilon square by 2 and y square will also be less than plus 8 and y square is also less than epsilon square plus 8. The mod x should be less than root epsilon upon 2 root 2 and mod y should be less than root epsilon upon 2 root 2. ठीक है, so this will be less than epsilon whenever x minus 0 का मॉडुलस is less than delta, y minus 0 का मॉडुलस is less than delta and what should be delta? root epsilon upon 2 root 2. ठीक है, जब x का मॉडुलस इससे छोटा हो जाएगा, y का मॉडुलस इससे छोटा हो जाएगा, तो ये किससे छोटा हो जाएगा? epsilon से, right? So this way, so it shows that fx जो फंक्शन है that is continuous एट पॉइंट 0, 0. तो कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आपने भी प्रूव करना है कि किसी की कंटिन्यूटी की प्रूव करनी है देन यू विल हैव टू गो बाय डेफिनेशन ओनली. बट अगर आपने ये प्रूव करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है देन यू विल यूज दैट रिजल्ट कि y इक्वल टू mx की फॉर्म में, राइट? इफ यू आर एबल टू शो दैट लिमिट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ m then it is immediate that function is not continuous is not at that point, right? So this is the क्वेश्चन. इसकी कुछ एग्जांपल्स रह गई जो मैं आपको आगे के लेक्चर में कराऊंगी, राइट? थैंक यू.